Good morning, students. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स of section B about knowledge representation, Hopfield model, featured maps, clustering algorithms. So these are the topics which we will start covering from today's PPT. Okay, so the first today we will learn something about the pattern recognition problems. Pattern recognition problems. So this is the topic. Today we will focus on this topic. So we should start, I think, the students are busy somewhere else because only 3 of you are present: Ashish, Preeti and Rahul. Okay, we will start now. So far we have considered issues in pattern recognition and introduced up to now we have introduced the basics of artificial neural networks. In this PPT we will discuss some functional units of artificial neural networks that can solve simple pattern recognition tasks. These functional units form building blocks for developing neural architectures to solve the complex pattern recognition problems. So first of all we will discuss what are the pattern recognition problems. First of all, the basic functional units. What are the basic functional units? First of all, we have to find out the functional units on which we will apply the pattern recognition tasks. इस फंक्शनल यूनिट्स के ऊपर हम पैटर्न रिकॉग्निशन टास्क को अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम उन फंक्शनल यूनिट्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. So as you see in your PPTs there are 3 types of artificial neural networks. अब तक हमने पढ़ा है about the neural networks that there are 3 types of artificial neural networks: feed forward, feedback and a combination of both. So the simplest network of each of these type form the basic functional unit. So जो भी नेटवर्क सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंगल लेयर के अंदर होगा उसको हम कहेंगे बेसिक फंक्शनल यूनिट. ओके, सो दे आर फंक्शनल. अब पहले फंक्शनल क्या है और बेसिक क्या है, इन दोनों के बारे में मैंने लिख रखा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दे आर फंक्शनल? दे आर फंक्शनल बिकॉज दे कैन परफॉर्म टास्क बाय देमसेल्व्स using simple pattern recognition tasks. They are functional because they can perform by themselves some simple pattern recognition tasks. ये अपने आप ही पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. So that is why they are known as functional. They are basic because they form building blocks
for developing neural network architectures for complex pattern recognition tasks. बेसिक क्यों है? बिकॉज बेसिक चीज़ होगी तभी उसे हम कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं. सो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स network architectures. So that is why they are used as basic functional units. 3 types: first, second and third. So these are the basic functional units. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वन, दी फीड फॉरवर्ड नेटवर्क. First of all, we will discuss the feed forward network. So, the simplest feed forward network is a 2-layer network with m input units and n output units. It is the simplest form of feed forward network. हमारे पास input units हैं m और हमारे पास output units हैं n. Okay. So this is a topology, you can say fan out or in star topology, winner takes all, you can say. So it is a in star topology and it is a feed forward network where we have m inputs और n outputs. So इसके बारे में डिस्कस हम काफ़ी बार कर चुके हैं. लगभग जब भी हमारी कोई भी हमने क्लास के अंदर जो भी पीपीटी चली है आपकी, सभी के अंदर अबाउट दिस नेटवर्क हमने डिस्कस किया है. सो इन दिस ईच यूनिट इज कनेक्टेड टू ईच ऑफ द अदर आउटपुट यूनिट्स एंड ईच कनेक्शन इज एसोसिएटेड विद ए वेट और स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन. टिपिकली फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स आर यूज्ड फॉर पैटर्न एसोसिएशन. कहाँ यूज़ होता है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क? पैटर्न एसोसिएशन में यूज़ होता है, पैटर्न क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न मैपिंग. इन 3 चीज़ों में हमारा ये यूज़ होता है. ओके. सो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, इसके अंदर m इनपुट और n आउटपुट होती है और ये हमारा यूज़ होता है पैटर्न एसोसिएशन, पैटर्न क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न मैपिंग. सेकेंड वन वाज द फीडबैक नेटवर्क. काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द फीडबैक नेटवर्क. इट कंसिस्ट ऑफ n प्रोसेसिंग यूनिट्स. दीज आर द n प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईच कनेक्टेड टू ऑल अदर यूनिट्स, ईच कनेक्टेड टू द ऑल अदर यूनिट्स. द कनेक्शन स्ट्रेंथ्स और द वेट्स आर assumed टू बी सिमेट्रिक. द वेट्स आर सिमेट्रिक, that is wij is equal to wji. Depending on the task, the units of the network could be linear or non-linear. Typically, feedback networks are used for auto association or pattern storage. Okay, auto association और pattern storage, इस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. Third one is the competitive learning. First one, feed forward, feedback. Combination of both is the third part, which is the competitive learning. That is known as the competitive learning. The simplest combination network. अब तक हमने बेसिक नेटवर्क पढ़े थे, दोनों के दोनों फीड फॉरवर्ड और फीडबैक. अगर हम कंबाइन करें, कॉम्प्लेक्स बनाएं, सो दैट विल बिकम ए competitive learning and it is the simplest form of a combination network and it is known as competitive learning network. Okay, so it consists of an input layer of units feeding to the units in the output layer in a feed forward manner. There are m input units or n output units. So input units are feeding to the output layer in a feed forward manner. अभी तक हमने यह पढ़ा था और हमने feed forward और feedback दोनों को combine कर दिया है यहाँ के अंदर, and a feedback connection among the units in the output layer including self feedback. So this is known as the self feedback, and we have combined both feedback and feed forward network. That is why it is known as a combination network, and the combination network is which network? It is a competitive learning network. So the output units are either linear or non-linear depending on the task the network should perform.
टिपिकली कहाँ यूज़ होती है? कम्पिटिटिव लर्निंग नेटवर्क इज यूज फॉर पैटर्न ग्रुपिंग एंड क्लस्टरिंग। द यूज़ ऑफ कम्पिटिटिव लर्निंग नेटवर्क इज फॉर पैटर्न ग्रुपिंग एंड क्लस्टरिंग। ठीक है जी, तो ये हमारे 3 तरह की हमारी फंक्शनल यूनिट्स हमने डिस्कस की हैं अभी, 3 बेसिक फंक्शनल यूनिट्स। नाउ वी विल अप्लाई दीज फंक्शनल यूनिट्स we will apply these functional unit on pattern recognition, जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले फीड फॉरवर्ड की मैंने आपको बताई थी एप्लीकेशंस, पैटर्न एसोसिएशन, पैटर्न क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न मैपिंग। सबसे पहले हम ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैटर्न एसोसिएशन। So what is a pattern association? The pattern association problem is illustrated in this figure. यहाँ हमारे पास इनपुट पैटर्न स्पेस है और हमारे पास आउटपुट पैटर्न स्पेस है, एंड यू कैन सी देयर आर इनपुट यूनिट्स लाइक A1, A2 up to so on, similarly B1, B2 up to so on. So the units are connected to the respective output. Okay, so the units are connected to the respective outputs. सो व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है? एसोसिएशन कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर हमारे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। द इनपुट पैटर्न्स आर शोन एज A1, A2, A3 एंड आउटपुट पैटर्न्स आर शोन एज B1, B2, B3। A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3, इसके अकॉर्डिंग हमने इनपुट पैटर्न्स और आउटपुट पैटर्न्स को शो कर रखा है। The objective of designing a neural network is to capture the association between input-output pattern pairs. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें एक एसोसिएशन बनाना है बिटवीन द इनपुट-आउटपुट पैटर्न पेयर्स, तो हमने एसोसिएशन बना रखा है। अब क्या है? When any of the inputs A1 is given the when any of the inputs is given the when any of the inputs is given the corresponding output B1 is retrieved। A1 से हम B1 को रिट्रीव कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ हम एक सपोज करते हैं कि इनपुट पैटर्न AI is not used in training set is given। हमारे पास एक ऐसा इनपुट पैटर्न है जो कि हमने ट्रेनिंग सेट में यूज़ नहीं किया है, वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सो if the training input pattern A1 is closest to AI, AL is closest to AI, then the pattern association network should retrieve the output pattern BL for the input pattern AI। So यहाँ ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि इफ़ देर इज़ ए ट्रेनिंग इनपुट पैटर्न AL, यहाँ एक AI हमें शो हो रहा है और एक AL हमें शो हो रहा है। AI हमने ट्रेनिंग सेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर रखा, सो वी हैव टू फाइंड आउट BL। सो BL is there, so BL we have to find out this BL using the AI is not present, so we will find out its close which is very similar to this AI, and the similarity between AI and AL is there. So instead of AI we will associate AL with the BL. So the pattern association network should retrieve the output pattern BL for the input pattern AI। AI के लिए हमें फाइंड आउट करना था, मगर AI का हमें कुछ अता पता नहीं है कि वो क्या है, वो ट्रेनिंग सेट के अंदर नहीं था। जब हमने ट्रेन कर रहे थे हमारी इनपुट्स को तो वहाँ वो प्रेजेंट नहीं था, वो एकदम आ गया, तो हम उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो वहाँ हम उसके सिमिलर कोई दूसरा इनपुट पैटर्न लेते हैं। यहाँ हमने AL लिया है और उससे हमने BL फाइंड आउट किया है फॉर AI। AI के लिए AI का काम यहाँ जो कर रहा है वो AL कर रहा है। सो दैट इज़ नोन एज द पैटर्न एसोसिएशन। ठीक है, सो दिस इज़ पैटर्न एसोसिएशन।
Thus the network should display accretive behavior and the pattern AI यहाँ ट्रेनिंग सेट के अंदर था नहीं, तो इसका मतलब हम इसको कहते हैं इट इज़ ए नॉइजी पैटर्न. इट इज़ नोन एज ए नॉइजी पैटर्न. It is known as a noisy pattern and it can be given by AI plus E. E is the noisy vector. So that because it is a noisy pattern, we cannot find out the output from this AI. So we have to use its similar input pattern. The similar input pattern is AL and we will find out the output. So that is why it is known as पैटर्न एसोसिएशन. हमने अपना टास्क किसी और को दे दिया. हमने अपना टास्क जो है, हमारा काम जो था वो किसी और को दे दिया. कई बार हम करते हैं कि हम ये बहाना मार देते हैं कि या हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि हाथ में दर्द है जी, हम कोई असाइनमेंट बना रहे हैं वो नहीं हो पा रही है, तो हम अपने किसी फ्रेंड को कहते हैं कि यार तू ये काम कर दो प्लीज़, सो दैट वी कैन आई कैन नॉट बी पनिश्ड. ठीक है, तो सो दैट आप किसे ढूंढोगे उसके लिए जो आपका बिल्कुल, जो आपको पता है कि वो आपका काम कर सकता है. ऐसा तो नहीं है आप क्लास के अंदर किसी को भी कह दोगे और वो आपके असाइनमेंट बना देगा. सो आप ऐसे को ढूंढेंगे जो आपका काम कर सकता है. सो दैट इज़ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट ए पैटर्न दैट इज़ क्लोजेस्ट टू मी. ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज पैटर्न एसोसिएशन and that pattern associated will do your task. So that is why it is known as pattern association task. Pattern association task. ठीक है जी. Second one is the pattern classification. Pattern classification is there. So what is a pattern classification task? It is illustrated in the figure. In the pattern association problem, if a group of input patterns correspond to the same output pattern, then typically there will be far fewer output patterns compared to the number of input patterns. ठीक है, तो यहाँ पैटर्न क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि हमारे पास अगर एक जैसे ही इनपुट्स हैं, जैसे कि अभी हमने इसके अंदर देखा कि अगर इसके सिमिलर हम फाइंड आउट करें, हमें मिल गया AI जैसा ही AL मिल गया, AI भी वही आउटपुट देगा और AL भी वही आउटपुट दे रहा है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न एसोसिएशन की बजाय जाना पड़ेगा पैटर्न क्लासिफिकेशन में. हमें वो क्लस्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो सारे एक जैसे दिखते हैं. तो वो हम फाइंड आउट करना द क्लस्टर्स और द इनपुट पैटर्न्स विच आर सिमिलर विद ईच अदर. So that is known as the pattern classification. So in the pattern association problem, if a group of input patterns correspond to the same output pattern, then typically there will be far fewer output patterns. यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3 12 है इनपुट्स और हमारी आउटपुट्स आ रही हैं सिर्फ 4. So that is why it is known as pattern classification task. हमने इनपुट पैटर्न स्पेस में सिमिलर एसोसिएट जो इनपुट्स थे उनको कंबाइन किया और बिकॉज दे यील्ड द सेम आउटपुट, वो सारे एक ही आउटपुट दे रहे थे, तो हमने उनको कंबाइन कर दिया, एक क्लस्टर बना दिया. एंड दिस इज़ नोन एज द पैटर्न क्लासिफिकेशन. पैटर्न क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है पैटर्न क्लासिफिकेशन का. यहाँ क्या है कि हर एक की हैंड राइटिंग अलग है. कोई ए ऐसे बना रहा है, कोई ए इस तरह से बना रहा है और कोई ए इस तरह से बना रहा है. तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही इनपुट दे रहे हैं. ये भी क्या दे रहे हैं आउटपुट ए. कोई ए ऐसे बना रहा है, कोई ए ऐसे बना रहा है, कोई ए ऐसे बना रहा है, मगर तीनों के तीनों क्या है, ए ही है. आउटपुट क्या है हमारी ए. बनाने का तरीका सबका अलग है. तो यही है हमारी इनपुट तो हमारी कई तरह की है और हमारी आउटपुट एक ही है, दैट इज़ ए. सिमिलरली इनपुट हमारी यहाँ पे 3 तरह के बी हमने लिख रखे हैं. ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया,
ऐसे लिख दिया। तीनों की आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, हमें क्या फाइंड आउट किया है। सो दैट इज नोन एज द पैटर्न क्लासिफिकेशन, इसको हम कहते हैं पैटर्न क्लासिफिकेशन। थर्ड वन इज नॉन एज पैटर्न मैपिंग। मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था पैटर्न एसोसिएशन, मैंने आपको बताया है, पैटर्न क्लासिफिकेशन, एंड द थर्ड वन इज द पैटर्न मैपिंग। So pattern mapping, what is pattern mapping? A pattern mapping, if the objective is to capture the implied mapping instead of association, then the problem becomes a pattern mapping problem. So here in the figure you can find out there is a set of input output pattern pairs as we have in the pattern association problem के अंदर भी इसी तरह से हमारे पास इनपुट आउटपुट पेयर्स थे। मगर यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज हो गया। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू कैप्चर द इम्प्लाइड मैपिंग, जो हमारी इम्प्लाइड मैपिंग है उसको कैप्चर करना है इंस्टेड ऑफ एसोसिएशन, देन द प्रॉब्लम बिकम्स द पैटर्न मैपिंग प्रॉब्लम। यानी कि हमारा क्या था, हमारे पास एक सेट आया था दैट वाज नॉट ट्रेंड, जैसे इसके अंदर भी आया है। तो हमने पैटर्न एसोसिएशन में क्या किया था, इसको एसोसिएट कर दिया था किसी उसी के सिमिलर इनपुट पैटर्न के साथ। मगर यहाँ मैपिंग के अंदर हमने क्या किया है, हमने उसको एसोसिएट नहीं किया है, उससे जो आउटपुट आ रहा है वो हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास ये वाला हमारा ट्रेनिंग सेट के अंदर है ही नहीं, तो हमने देखा कि ए कुछ ना कुछ सिमिलर है इसके, तो हमने इस इनपुट को इसके साथ अटैच कर दिया इन एसोसिएशन। ठीक है, मैपिंग के अंदर क्या है, मैंने कुछ ए बनाया इस तरह से ताकि मुझे समझ ही नहीं आया कि ए कैसे बनाना है, ऐसा बना दिया मैंने। अब कन्फ्यूजन ये है कि यह ए है या फिर ये बी है, दोनों में से क्या है, ए है या बी है, पता ही नहीं चल पा रहा है। एकदम नया ट्रेनिंग सेट आया है, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये हम किस चीज़ के साथ एसोसिएट करें, फर्स्ट वन के साथ या सेकंड वन के साथ। ये ए भी लग रहा है और बी भी लग रहा है। तो व्हाट वी डू, वी मैप दिस एंड वी फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दिस। इसकी आउटपुट कैसी होगी हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ये ए ही बनेगा या बी बनेगा। तो दैट प्रॉब्लम is known as the pattern mapping problem. So that problem is known as the pattern mapping problem. So here once the system behavior is captured by the network, the network would produce a possible output pattern for the new input pattern not used in the training set. तो ऐसा हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर कभी हमने देखा नहीं था, तो हम फिर भी आउटपुट पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द न्यू इनपुट पैटर्न, एंड दैट इज़ नोन एज द पैटर्न मैपिंग. So this is known as the pattern mapping. ठीक है. So on the basis of this pattern mapping, what is there? Pattern mapping, pattern classification, and pattern association. We will study the Hopfield model. इसके ऊपर ही हमारा हॉपफील्ड मॉडल होगा, और इसी के बेसिस के ऊपर हमारा एक दूसरा मॉडल भी होगा, दैट विल बी द फीचरिंग मैप्स. दैट विल बी द फीचरिंग मैप्स. So these two topics are on the basis of the pattern recognition tasks जो अभी हमने पढ़े हैं. पैटर्न रिकॉग्निशन टास्क जो हमने अभी पढ़े हैं, ये सारे के सारे इन्हीं के बेसिस के ऊपर
हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स रिलाई करते हैं फ्रॉम दी सिलेबस। हमारे सिलेबस के अंदर से हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं लाइक फीचर मैप्स, होप फिल मॉडल, these represent these are presented only on the basis of this pattern recognition tasks. Okay, so आज के लिए हम अपना काम यहीं फिनिश करते हैं। Today's task, today's PPT we will finish here. ओके, सो आज के जो क्लास है हम यहीं ऐड करते हैं। टेल मी वन थिंग दैट